السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں ناردرن ایریاز کی، ایسے علاقوں کی جہاں پر بڑے بڑے پہاڑ، جنگلات، درخت اور بے تحاشا خوبصورتی ہے، لیکن مانا یہ جاتا ہے کہ ان علاقوں میں غیر مرئی مخلوقات کا، جنات کا بسیرا بہت زیادہ ہے۔ میں نے بہت سی لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں جن میں یہ پایا گیا ہے کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں پر ان جنات کا بسیرا ہے۔ پھر جب وہاں پر انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بناتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آلریڈی اپنے چینل پر میں ناردرن ایریاز کی کافی خوفناک کہانیاں شیئر کر چکی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی اور انجوائے بھی کی ہوں گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو خوفناک کہانی میں لے کر آئی ہوں، یہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں جن کی خوفناک کہانی ہے، جو کہ کابل میں رہتے ہیں۔ کابل کے پٹھان ہیں وہ، لیکن ان لوگوں کے گھر یہاں پر بھی ہیں، پنجاب میں بھی۔ وہ بتاتے ہیں آج سے 2829 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ کابل میں رہتے تھے تو وہاں پر ان کے جو گھر ٹپیکل سٹائل میں ہوتے ہیں، جس گاؤں میں وہ لوگ رہتے تھے، وہاں پر لوگوں کے گھر عموماً پہاڑوں کے جو پتھر ہوتے ہیں انہی سے بنائے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں، ان کے جو اوپر سیکنڈ پورشن تھا، وہاں پر ان لوگوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ سوکھی لکڑیاں کاٹ کے رکھتے تھے، اور جب بھی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی کھانا پکانے کے لیے یا گھر میں استعمال کے لیے، سردیوں کے موسم میں آگ سیکنے کے لیے، تو اوپر سے لکڑیاں لائی جاتی تھیں۔ خاص طور پر اگر رات کو ضرورت پڑتی تھی تو جب بھی کوئی اوپر سے لکڑیاں لینے جاتا تھا اوپر والے کمرے سے، تو اکثر کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ اس کمرے کے جو سامنے والی دیوار ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک کالے رنگ کا سایہ نما کوئی چیز ہوتی تھی۔ اکثر گھر کے لوگوں نے اس سائے کو دیکھا، اور جب کوشش کی اس کو پرکھنے کی یا اس کو جاننے کی تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان کی بیٹی، شام کا ٹائم تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور آگ جلانی تھی سیکنے کے لیے، کوئلے بنانے تھے، تو وہ اوپر سے لکڑیاں لینے گئی۔ جیسے ہی سیڑھیوں میں چڑھ کے اوپر گئی، ابھی کمرے کے پاس ہی جانے لگی تھی، تو اس کو ایسا لگا دیوار کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، اور آج وہ چیز بہت زیادہ واضح تھی۔ اس نے جب اس چیز کو دیکھا تو چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی اور آ کر سب گھر والوں کو بتایا کہ چھت کی دیوار کے اوپر کوئی بیٹھا ہے کالے رنگ کے لباس میں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد گھر کے جو مرد حضرات تھے اور باقی سب اوپر گئے، وہاں پر جا کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اس دیوار کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی دوسری طرف بالکل ویرانہ تھا، وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، بڑے بڑے درخت، اور کافی اونچی وہ جگہ تھی جہاں پر ان کا وہ گھر تھا۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ دن بدن یہ سایہ اکثر لوگ دیکھنے لگ گئے تھے گھر کے۔ اکثر ان کے محلے کے بھی ایک دو لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ رات کے ٹائم اگر ہم لوگ گھر دیر سے آتے ہیں، آپ کے گھر کی طرف نظر پڑتی ہے تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی چھت کے اوپر رات کے ٹائم کوئی چل پھر رہا ہوتا ہے، دیوار سے باہر جھانک رہا ہوتا ہے، مگر واضح نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے جو ہم لوگوں کو اس طرح سے رات کے ٹائم نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا، ان کی بیٹی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں۔ پتہ نہیں اس کو کیا سوجھی، وہ جا کر اس دیوار کے پاس بیٹھ گئی اور اس دیوار کو دیکھنے لگی کہ رات کے ٹائم یہاں پر کس چیز کو دیکھا تھا میں نے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس دیوار کے اوپر خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو آ کر بتایا کہ دیوار کے اوپر بالکل تازہ خون کے چھینٹے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا خون ہے وہ۔
जब घर वालों ने वो चीज़ जाकर देखी तो वहाँ पर खून के छींटे थे। उसके बाद वो नीचे आ गए सब, और उसको भी यही कहा गया कि अब तुम ऊपर नहीं जाओगी। जितनी भी लकड़ी ज़रूरत होती थी वो टाइम से ही रोशनी में ही नीचे ले आते थे कि रात के टाइम हम ऊपर जाए ही ना। रात के टाइम उसी रात जिस दोपहर में उन्होंने खून के छींटे देखे थे, उनको अपनी छत के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लग गई। सर्दियों में वैसे भी पंखे बंद होते हैं तो ऐसी आवाज़ें, ज़रा सी भी कोई आहट हो तो क्लियरली सुनाई देती है। उन लोगों ने जब गौर किया तो रोने की आवाज़ें उनके छत से आ रही थीं। वो लोग बड़े हैरान हुए कि पता नहीं किसके ये रोने की आवाज़ें हैं। वो जान तो गए थे कि जो साया छत पर नज़र आता है, और आज खून के छींटे भी देखे हैं, पता नहीं क्या चीज़ होगी। उसके पीछे कोई भी नहीं गया उस आवाज़ के, और बिल्कुल खामोश हो गए। अब सब घर वालों ने यही डिसाइड किया कि छत पर आना जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। यही हुआ कि छत के ऊपर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। मगर अक्सर छत से किसी की आहट की, किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। कुछ ही दिनों के बाद उनकी बेटी की शादी थी। उस घर में ही एक शादी थी। जो लड़की दीवार के ऊपर खून के छींटे देखकर आई थी, उसी की शादी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे रस्मों के मुताबिक जो शादी के फंक्शन होते हैं, पहले जो ढोलकी बजाते हैं, रिलेटिव्स इकट्ठे होके, महल्ले के लोग ढोलक रखते हैं, उस पर गाने गाए जाते हैं। उस लड़की की माइयों का फंक्शन था, और वो फंक्शन उन्होंने वहाँ पर अपने घर में ही टेंट लगा कर तो सारा अरेंजमेंट किया था, क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा था और सहन भी था। सीढ़ियों वाली जो जगह थी वो बिल्कुल ओपन थी, उसके आगे कोई दरवाज़ा नहीं था। महल्ले की सारी लड़कियाँ दुल्हन के पास बैठ के गाने गा रही थीं। सब बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर के बाद सीढ़ियों में से एक लड़की आई जो कि बहुत सजी सवरी थी। आके उन लड़कियों के पास बैठ गई। महल्ले की सभी लड़कियों ने यही समझा कि इनके मेहमान आए होंगे, तो उनमें से कोई लड़की होगी जो ऊपर वाला इन लोगों ने कमरा दिया होगा, वहाँ से तैयार होके आई होगी। घर वालों ने भी इतना ख़ास गौर नहीं किया कि कौन आकर बैठा है। यही सबको लगा कि महल्ले की कोई लड़की होगी। इग्नोर कर दिया गया उस चीज़ को। वो बिल्कुल आकर दुल्हन के पास बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद दुल्हन ने ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर दी और एकदम से बेहोश हो गई। किसी को समझ नहीं आई कि एकदम से इसको हुआ क्या है। जब सब औरतों ने, सब लड़कियों ने उसको बेहोश देखा तो ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उनमें से एक आंटी ने सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने सूरत यासीन पढ़ना शुरू की, वो जो सीढ़ियों से लड़की तैयार होकर आई थी वो भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उन लोगों ने, सबने देखा कि ये भाग कर ऊपर कौन गया है। उनमें से 2-3 औरतें, लड़कियां उस लड़की के पीछे भागकर छत पर गईं कि ये छत पर क्यों भाग कर गई है। जैसे ही वो लोग छत पर गईं, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कमरा भी बंद था और छत पर कोई चीज़ नहीं थी। वो लोग बहुत हैरान हुई और फौरन डरती हुई नीचे आ गईं। उस दुल्हन को अभी तक होश नहीं आया था। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। इमाम साहब को फ़ौरन बुलाया गया। इलाके में उस टाइम सब जाग रहे थे, शादी का फंक्शन था। फ़ौरन इमाम साहब आए। उन्होंने जब उसको देखा वो बेहोश थी, उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। जब उसको दम किया तो उसको थोड़ी ही देर के बाद होश आई और वो चीखें मार रही थी और उसने ये कहा कि मेरे पास एक बहुत ही भयानक शक्ल की लड़की बैठी हुई थी। वो मेरे पैरों के ऊपर अपने हाथ लगा रही थी। जिस टाइम मेरे पाँव के ऊपर कोई चीज़ मुझे महसूस हुई तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो बिल्कुल मेरी चेयर के पास बैठी थी और उसका मेरी तरफ फेस था और बाकी बाल उसके चेहरे के ऊपर आए हुए थे। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मैं डर के बेहोश हो गई। फिर लोगों ने इमाम साहब को बताया कि हम लोगों के छत के ऊपर भी एक काले रंग का साया दीवार पर बैठा नज़र आता है और इसी ने दीवार के ऊपर खून के छींटे देखे थे। तो उनका ये कहना था कि आपके छत के ऊपर बहुत ही भयानक किसी गैर मरई मखलूक का बसेरा है जो कि जिन्नात हैं। इस लड़की ने उस खून के
देखा, उसके पास गई, उस दीवार के पास बैठी तो उन्होंने अपनी निशानी जाहिर की। इस वजह से वो इसको डरा रहे हैं। फिर उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए और उनसे ये कहा कि इस घर में शादी का फंक्शन ना करें। फिर पास ही उनके दूसरे रिलेटिव्स का भी घर था। उस लड़की की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फिर सादगी के साथ उन लोगों ने उसका निकाह करके रुखसती कर दी। ये हम लोगों के रिलेटिव्स थे जिनकी ज़िंदगी में ये सच्चा खौफनाक वाक़या आया था। इसी तरह से मेरे रेगुलर लिसनर हैं ज़ीशान, उन्होंने आज फिर एक हॉरर इंसिडेंट शेयर किया है जो उनकी अम्मी की ज़िंदगी में पेश आया। वो बताते हैं कि उनके अब्बू एयरफोर्स के ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग पेशावर में हुई थी। वो सब वहीं पर रहते थे। सर्दियों का ही मौसम था। उनके नाना अब्बू का इंतकाल हो गया तो सबको टोबा टेक सिंह में के करीब ही उनका कोई गांव था, वहाँ पर आना था। घर के बाकी लोग उनके चालीसवें के ख़त्म तक पहुँच गए थे 2 दिन पहले ही। इनकी ज़ीशान की अम्मी ने, इनके भाई ने, इनके अब्बू के साथ आना था, इसलिए वो अभी दूसरे रिश्तेदारों के साथ नहीं आए थे। ज़ीशान के भाई उस वक्त 2 साल के थे और उनके घर में उनकी दादी अम्मा की छोटी बहन भी रहती थी, जिसको वो छोटी दादी कहते थे। छोटी दादी के साथ ज़ीशान की अम्मी और उनके भाई उसी घर में थे और अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे तो फिर ये लोग जाएंगे। वो कहते हैं कि अचानक रात का टाइम था, सर्दियाँ थीं, सारा घर का काम काज करके दोनों ख़वातीन बच्चे को लेकर एक कमरे में लेटी हुई थीं। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे सहन में कोई चल फिर रहा है। ज़ीशान की अम्मी ने छोटी दादी से ये कहा कि इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे सहन में कोई चल फिर रहा है। उन्होंने जब गौर किया तो आवाज़ें बहुत वाज़िया थी। इस तरह से महसूस हो रहा था कि सहन में बाकायदा कोई चल रहा है। पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद तसल्ली के साथ पूरे घर को लॉक किया है, तभी आकर इधर लेटी हूँ। पता नहीं फिर बाहर कौन है। अपना वहम दूर करने के लिए जैसे ही वो उठी, सहन में गई, दरवाज़ा खोला, बहुत ठंड थी, धुंध भी थी। क्या देखती हैं कि सीढ़ियों में 16-17 साल का कोई लड़का खड़ा है। वो बहुत हैरान हुई कि हम लोगों के घर ये लड़का कौन आया है। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का उनको देख रहा था। उनकी ये बात करने की ही देर थी कि वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर चला गया और वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियों में चढ़ती हुई, उसको बुलाती हुई, मुखातिब करती हुई उसके पीछे चली गई। जैसे ही वो छत पर गई उसके पीछे और उससे पूछ रही थी कि मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों आए हो। वो बहुत डर भी रही थी कि पता नहीं ये कौन है, हमारे घर में कौन आ गया है। अभी इसको ये कह ही रही थी कि वो बिल्कुल दीवार के सामने गया और गायब हो गया। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो आयतल कुर्सी पढ़ती, अल्लाह अकबर के नारे लगाती नीचे भागी। फौरन दरवाज़ा बंद किया और ज़ीशान की अम्मी से यही कहा कि बच्चे के ऊपर भी आयतल कुर्सी पढ़ो और दुरूद पाक पढ़ो। मैंने किसी गैर मरी मखलूक को अपने घर में देखा है। वो बताते हैं कि उसके बाद पूरी रात वो चीज़ उनके घर में घूमती फिरती रही। कभी सीढ़ियों से ऊपर जाती थी तो कभी सीढ़ियों से नीचे और कभी सहन में चल फिर रही थी। काफ़ी दफ़ा उसने उस कमरे का दरवाज़ा भी खटखटाया कि मैं इनको डराऊं और नुकसान दूं, मगर वो लोग सारी रात आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ते रहे। ज़ीशान कहते हैं ये कहानी आज से 25 साल पहले की है और उनकी अम्मी की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है। फजर की अजान तक वो चीज़ उनको डराती रही और फिर एकदम से उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। सिस्टर्स, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात अपना बसेरा किए होती हैं। हम इंसानों को नहीं पता चलता। जब हम लोग वहाँ पर मुकीम होते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें इस डर से अपना आप जाहिर करती हैं कि हम लोग उनको वहाँ से निकाल ना दें, क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। फिर वो चीज़ें अपना आप जाहिर करने लग जाती हैं
अपनी निशानियां देना शुरू कर देती हैं। कभी वो इंसानों के रूप लेकर सामने आते हैं, कभी वो साए बनकर सामने से गुजरते हैं, कभी वो जानवरों की आवाज़ों में हमें मुखातिब करते हैं अपना आप जाहिर करने के लिए। कभी वो ऐसी निशानियां देते हैं कि घरों की चीज़ें गायब हो जाती हैं और कुछ अरसे बाद रखते कहीं से हैं और मिलती कहीं से हैं। नाउज़ बिल्लाह कभी वो लोगों को बीमारियां भी दे देते हैं, नुकसान भी पहुंचा देते हैं। बहुत सी इकसाम है गैर मरई मखलूक़ात की। ज़्यादातर इकसाम गैर मरई मखलूक़ात की ऐसी होती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। मगर बहुत से गैर मरई मखलूक़ात ऐसे भी हैं जो इंसानों का भला करते हैं, उन्हें फ़ायदा देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम लोग स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम लोग नहीं जानते हम लोगों के साथ बहुत से जिन्नात इंसानों के रूप में पढ़ते हैं। मदरसों में कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं जो मुसलमान जिन्नात होते हैं। जब हम लोग हज उम्रा करने जाते हैं, बहुत से जिन्नात हम लोगों के साथ हज उम्रे भी करते हैं। बहुत से अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी मखलूक़ात भी होती हैं जो इंसानों को बड़े बड़े नुकसानात से बचा लेते हैं। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानों को कभी कभार डराते भी हैं और नुकसान भी देते हैं। उसमें कुछ गलती इंसानों की अपनी भी होती है। अपने घरों को पाक साफ रखा करें, अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत किया करें, अपने घरों में बाकायदगी से नमाज पढ़ा करें, बावज़ू रहा करें। जहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है, जहाँ पर कुरान पाक सुना जाता है, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पर बावज़ू रहा जाता है, जहाँ पर ज़िक्र इलाही होता है, जहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वहाँ पर जिन्नात नहीं रह सकते। फिर वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने घरों में लाजमी सूरत बकरा लगाया करें, इससे काले जादू के असरात, जिन्नात के असरात घर से चले जाते हैं। सूरत रहमान लगाया करें, इससे घर में बरकत आती है। अगर कोई बीमार हो तो वो शिफा पाता है। लाजमी इन चीज़ों का एहतमाम किया करें, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों की ज़िंदगी के लिए। नमाज बाकायदगी से पढ़ा करें, बावज़ू रहा करें और अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हर बुरी बला से, हर बुरी आफत से हम सबको महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। और वो लोग जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुन रहे हैं मगर अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर एंजॉय करते हैं मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी नौशीन विर्क के नेम से है, वहाँ पर मेरा खौफनाक कहानियों के नेम से ग्रुप भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।